सर आप उनके साथ प्रॉब्लम बोलो कि होगा वो जो चीज आप क्या बोलना चाहते इसको इलैबोरेट करें जिसमें देखिए पीछा क्या है किसी भी एक विषय में किससे बात की जाए तो इसके बारे में पर्याप्त समझ होना चाहिए To become best. Become a math teacher. बेस्ट टीचर लाइक सॉक्रेटिस वसीम भाई कहाँ गए? Are you recording? Are you recording? To fulfill my all desires. All. All desires. All desires. So what are they? You greedy woman. This is only one desire to fulfill all desires. To be present in the session without attendance. One must feel happy whenever they come in contact with me. whenever They come in contact with me. You want to become a jug of beer? Short of vodka is better. Happy They should be happy and feel enlightened also. Now that's adding up, okay? Adding because then vodka doesn't make us feel enlightened. एक मौका दिया कितनी इच्छाएं खुद बढ़ी. To be able to communicate this philosophy to my family, immediate family, in the way that I have understood it. Human values part in In the way you understood, in the way it is being communicated. In the way I To have feel understood happy, it. हमें नहीं. Other one should feel happy. Wherever they come in contact. Okay, यही देखना है. To all the children of the world, be healthy, wealthy, and educated, well-equipped with the health facilities. I'm very wise with their अखंड समाज की व्यवस्था. We can wish at least. बोलो ना. That's triple ambition. Yeah, both the experience. So both parties. Now in front of थोड़ा connected. That all the animals So now have you been want to tortured on the sake of some customer, some kind of preconceived notions. They may be relieved from all such, mishaps. But they have all the rights. Innocent animals, plants. So now in front of connected. To make people happy. People should be happy when they come to contact. जो आपका इमीडिएट डिजायर हो भी नहीं सकते खाना अच्छा. इतने के बारे में बात करते हैं Sir, can I ask one thing? All these desires seems to be natural. I feel most of them are just cooked desires to participate in the session. तभी तो Would you like to go with the richest man ठीक है to मुझे लगता है इतने के बारे में बात मिलियन के साथ में नहीं जाता. buy car so that he takes care of these facilities and you travel? आपका first plan, नाइटमेयर्स बना रहे कि अच्छा बना रहे? तो उस लंच के बाद हमें नाइटमेयर्स बना रहे कि अच्छा बना रहे? मैं इनके रिक्शे को रिफॉर्मेट कर रहा हूँ. Replace कर रहा हूँ. सर 20 हो जाएंगे तो बहुत ही को इतने में ही बहुत है. बस अगर समाज
Sir, right now my one desire, that's a very simple one. I want to have Honda City next year. Right now I have Alto LXi. Top model I have. I want to have that again top model. Will it be possible for me? How is it Which one possible you for have me? now? Alto top. देखिए अभी कुछ बात नहीं कर रहे हैं ना, अभी क्लियर हो जाए। ये आपके डिजायर के फुलफिलमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो डिजायर के बारे में बात कर रहे हैं ना, हाउ टू फुलफिल, ये बात की बात है। अभी तो देखना शुरू करते हैं कि जो इच्छा है ना, इसका थोड़ा ध्यान करके देखते हैं कि सहज स्वीकार है भी कि नहीं है। ऐसे यहाँ शुरू करते हैं ना, लर्न पंजाबी एंड बंगाली, क्या कहेंगे इसको? वैसे ही मैं इसको 1 2 3 लिख देता हूँ। की कंडीशनिंग है तो 1 लिख देता हूँ, सेंसेशन है तो 2 लिख देता हूँ, है ना, नेचुरल एक्सेप्टेंस है तो 3 लिख देता हूँ। सर इधर लिख दीजिए, लिखेंगे सूची में। ठीक है, यहाँ कर देते हैं। सर थोड़ा हटा के दिखिएगा आगे। Can you give a color pen for this? Just number with a different color pen. ये एक है। ग्रीन से कर दीजिए सर, लगता है अच्छी तरह। ग्रीन या रेड? He's writing the legend. I mean, what is 1, what is 2, what is 3. Different colors. सर ये बताने से पहले थोड़ा सा विल, विश और डिजायर में अंतर बता दीजिए। विल, विश, डिजायर। क्या है, कोई अगर ऐसी इच्छा है ना जिसको पूरा करने का प्रोग्राम आपको पता नहीं है तो विश है। प्रोग्राम पता है तो वो डिजायर है। फिर ये देखने की बात है कि जो डिजायर है वो नेचुरल एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत सारे विशेष हो जिसका प्रोग्राम पता ना हो, कुछ है ना डिजायर जिनका प्रोग्राम आपने तय कर रखा है, बट न प्रोग्राम सही है इसका पता है, न डिजायर नेचुरल एक्सेप्टेबल है इसका पता है। ये दोनों ही जो चीजें हैं ना जिनके बारे में आपको निश्चित रूप से पता नहीं है वो सेल्फ डिफीटिंग ही है। मतलब उसको पूरा करके आपकी चाहना जो है निरंतर सुख समृद्धि की पूरी होगी, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। बहुत सारे अभी सारा एग्जाम्पल ठीक है, इसको देखते हैं। लर्न पंजाबी क्या लगता है इसको किससे जोड़ेंगे? 1 से 2 से या 3 से? पंजाबी क्यों पढ़ना है? किसी चीज को पढ़ने के लिए प्री कंडीशनिंग है। सेंसेशन उस किताब तो थोड़ा ऐसा करते हैं, जो एडी करंट है ना उसको थोड़ा रोक देते हैं। ये जो आपस में जो क्रॉस टॉक्स है उसको रोक के सीधे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। क्या लगता है इसको 2 नंबर लिख सकते हैं, सेंसेशन लिख सकते हैं। इनकी हामी लीजिए ना। थॉट है वो तो होता है। मुझे इसे सीखना है क्योंकि मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, मुझे लगा कि ये ओरिजिनल वर्जन में मुझे पढ़नी चाहिए। अगर मुझे वो लैंग्वेज आती होती और मैं ओरिजिनल वर्जन में पढ़ पाती तो मैं ज्यादा अच्छा समझ पाती। No, I think it is 2 still because there is a pleasure to get on the reading. This sensation, what is sensation? It's a pleasure. क्या कहेंगे, ठीक है ना, इसका गुड इशू है ना। इसको कैसे पता लगाया जाए? जैसे हमने कोई किताब पढ़ी है ना, तो पढ़ के ऐसा लगा कि अगर ये ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ पाते तो ज्यादा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता बहुत तो ज्यादा अच्छे से समझ पाते। हो सकता है कि जिसने ट्रांसलेट किया उसने एक आध कोई शब्द इधर उधर कर दिया, कुछ भी ज्यादा सही तरीके से वो समझ पाए। Purity ज्यादा होती है। हाँ, प्योरिटी ज्यादा होती है, प्रिसाइज। क्या कहेंगे तो अब्रिश वर्जन देखिए, अगर कोई चीज सेंसेशन से आ रहा है ना, तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि या तो उसका दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है ना आंखों को, या कानों से कोई बहुत मधुर ध्वनि सुनने को मिल रही है, या नाक को बहुत अच्छा गंध मिल रहा है, या जीभ को बहुत अच्छा स्वाद मिल रहा है, या त्वचा को बहुत अच्छा स्पर्श मिल रहा है, इतना ही है। तो ऐसा तो नहीं, ऐसा होता है कि अगर जो पंजाबी का फॉन्ट लिखा होता है उसको टच करके बहुत है ना
उसका जो स्पर्श है अच्छा लगता है, तो ये सेंसेशन से आ रहा होगा। तो सेंसेशन का इश्यू तो नहीं है। क्या कहेंगे, एक कहेंगे या तीन कहेंगे? Precondition. पहले तो चेक करेंगे कि Not natural acceptance. So even the assumption that the translated work is not as true as the original work, can that be a precondition? Just find out more. बताइए। I mean, I'm just It thinking is- loud, obviously. It is debatable because both the things are possible. Yeah. But in this case, what I can feel from the way she said it should be free. I think translation The only thing is, just one check. If she has also thought of Precondition वाला है। how to get this, then it is a desire. Otherwise, it would be a wish. वन ट्रांसलेशन इज अ बैड थिंग। अगर एक भाषा में जो बात कही गई है एग्जैक्टली इफ दैट कैन बी एक्सप्रेस इन अनदर लैंग्वेज, I think this तो is a उस भाषा की basic- गरीमा ये क्या उस- है? ये उस तरीके से कभी इसकी समझिए। बात नहीं कर रहे हैं कि विश है कि डिजायर है, तो ये भी मतलब बात कर रहे हैं। मान के चलते हैं desire है। Sir, three. मान के चलते हैं desire है, और according to me it is 3. मैं बोल रही हूँ, जैसे आपने कुछ ये वर्कशॉप अटेंड, मैंने वर्कशॉप अटेंड की। अब अगर मैं किसी स्टूडेंट को ये लेक्चर देती हूँ और उसके बाद से वो स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं ओरिजिनल वर्कशॉप अटेंड करके देखूँ, तो उसकी वो डिजायर 1, 2 या 3 में से क्या होगी? मेरी भी तो उसी टाइप की डिजायर है ना, कि मैंने किसी और का, किसी ने कुछ लिखा, उसको चेंज करके किसी और ने लिखा, मैंने उसे पढ़ा, अब मुझे लगता है मैं ओरिजिनल लिखा। So self verification करना चाहती तो हूँ। इसकी वेरीफाई है ना। आई डोंट नो। हाँ, करना चाहती हूँ। समझ Self verification करना चाहती हूँ। So if this desire is, है ना, coming from the desire that you want to understand the reality, Yeah. and to understand the reality, you Yeah. want to learn this language, then it is free. Natural acceptance. Yeah. If that is the case, है ना, that you have to find out. There could be other ways also, है ना। ये हो सकता है इसके और भी कोई आपके, है ना, इसके और भी किसी के और भी दूसरे डिजायर्स हो, तो पता करेंगे। सर रियलिटी किस चीज की? क्या कोई किसी पद्मावती के इतिहास की? रियलिटी किसकी? अगर आप नेचुरल एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं तो रियलिटी वो जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरे आई की प्रॉपर्टी है। अगर इन्होंने रानी पद्मावती की हिस्ट्री पढ़ी, बहुत लाइक की, अब वो बाइबल ठीक है, इसको और ब्रेकअप अंडरस्टैंड रियलिटी पहले लिख सकते हैं, है ना, टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सम इंसिडेंट, सम पर्सन, है ना। वो फिर वो भी क्यों, अगर रानी पद्मावती के बारे में इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि उससे अपने आप को समझना चाहते हैं, then again that desire is coming from natural acceptance. Yeah. Now let us build it up. So at this stage, this is coming from natural acceptance. Yeah. है ना, this is a good start, है ना। At this stage, this is coming from natural acceptance. Again, when you are mapping it from here to here, है ना, this may get mapped on the basis of some precondition. जैसे ये हो सकता है किसी ने आपसे कहा कि ये ऑथर जो है ना, बहुत सही आदमी है ना, और वास्तविकता के बारे में ही बात करता है, तो आपने मान लिया कि ऑथर वास्तविकता के बारे में बात करता है, ठीक है, मान्यताओं के बारे में बात नहीं करता है। So that is a kind of precondition that you have about the author. This is also precondition, you know, that the original author will be giving the right. Exactly. So यहाँ पे अगर देखें तो ये ना सहज स्वीकृति से आ रहा है, अगर यहाँ पे देखें इसके बीच की मैपिंग को, तो मान्यता से आ रहा है। मुझे तो अभी भी लगता है सर ये टूल, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ कुछ तो पढ़ना precondition ही है। मेरी समझ हमारे में- दिमाग में प्री कंडीशन का पड़ा है कि जो एग्जिस्टिंग ऑथर है इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। So as it was said. No, it's not for There truth. is a- It is to if there is enjoy the preconditioning. original more. और उसके बाद अगर हम उसके बारे में सोचते हैं Let me summarize. तो वैसे भी नंबर 3 हो जाता है। नहीं सोचे बिना करेंगे सारी चीजें नहीं रहेंगी, पहले ये नहीं सोचा तो बात ये हो गई, देखो ये करवा देती ये हो गई, इसकी ओनर भी समझ आएगी। She was reading the original. अच्छा, एक्सरसाइज तो बदल That गई। is exactly what he meant. नहीं Very बस conditional. बच्ची में कंडीशन लगा दो। पॉसिबल से मान लेते विदाउट मैंने ये वर्कशॉप मैंने इसको ऐसे लेक्चर किसी क्लास में दिया। अब अगर उस क्लास में स्टूडेंट को ओरिजिनल वर्कशॉप समझ जाता है, वही वाली एग्जाम की बात कर, वही चीज है मेरे को डिफरेंट। I don't, it's not for pleasure that I attend workshops. It is for enlightenment or whatever it is to make the quality of my life better. But when I read a book or when I go to an original book, it is a pleasure of my mind that I'm seeking. No, it's one and the same thing. Seeking. Yeah. That's not really. It could be. It could be a, You a want to story verify of something for sensation of the yourself. brain. जांचना चाहते हो ना, मानना नहीं चाहते ना। जांचना is a हाँ, natural. एक मिनट हाँ।
जांचना चाहते हैं ना, मानना थोड़ा चाहते हैं। जांचने के लिए तो फिर कहीं भी जा सकते हैं। As long as देखिए ये पूरा प्रोसेस है जो हम करने वाले हैं, है ना। यू हैव अ नेचुरल एक्सेप्टेंस, है ना, इट इज बेसिकली टू बी हैप्पी, ठीक है ना। उसको पूरा करने के लिए आप कुछ डिजायर करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से जो यहाँ तक हम पहुंचे, है ना, ये अगर ठीक है यानी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे ही है, तब फिर जो D1 है वो भी नेचुरल एक्सेप्टेंस से आता है। जैसे सुखी होना चाहते हैं, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है ना। इसके लिए स्वयं को समझना है, संबंध को समझना है, ये डिजायर है, ठीक है ना। ये जो डिजायर है ये नेचुरल एक्सेप्टेंस से आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ और मान लें, सुखी होना चाहते हैं, उसके लिए हमको एक बहुत बड़ा, है ना, घर खरीदना है, कार खरीदनी है, तो ये मान्यता से आ रहा है। तो आप ये देखना शुरू करिए कि आपका जो डिजायर का लैडर है ना, उसमें किस स्टेज पे नेचुरल एक्सेप्टेंस है, किस स्टेज पे रिकंडीशनिंग आ रही है, किस स्टेज पे, है ना, सिचुएशन आ रहा है। ये आपके अपने देखने के लिए होमवर्क है। ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है ना। जहां तक वो नेचुरल एक्सेप्टेंस से आ रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, जहां उसमें नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है ना, वहां पे वेरिएशन होगा। तो ये D1 जो है अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस से ही आ रहा है तो यूनिफॉर्मिटी होगी, हर एक के लिए एक जैसा होगा। अगर नहीं तो उसमें फिर वेरिएशन होगा। ये आपके देखने के लिए, अगर आप इसमें से किसी भी इच्छा को ले तो आप उसके फिर आधार में जाइए, है ना, क्यों ऐसा चाहते हैं, फिर ऐसा क्यों चाहते हैं, फिर ऐसा क्यों चाहते हैं, तो आपको पता लगेगा कि किसी स्टेज पे आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो सहज रूप से आपको स्वीकार तो है ना, बट आपने उसके बाद जो इस डिजायर को बिल्डअप किया वहां कहीं सहज स्वीकृति का भाव है और कुछ मान्यता आ गई, ठीक है। जैसे टू अंडरस्टैंड, है ना, इज आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस। समझने के लिए कुछ करना, है ना, ये क्या करना है, ये आपकी मान्यता से भी आ सकता है, सहज स्वीकृति से भी आ सकता है, संवेदना से भी आ सकता है। संवेदना मतलब सेंसेशन फ्रॉम द बॉडी, सेंसेशन मतलब जो भी हमको बॉडी से इंफॉर्मेशन आती है, दैट इज सेंसेशन, ठीक है। इनमें से किसी एक डिजायर को लीजिए और अगर आप ठीक से, है ना, उसको बिल्डअप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। किसी भी एक डिजायर को लीजिए, उसके फाउंडेशन में क्या डिजायर उसको देखिए, उसके फाउंडेशन में क्या डिजायर उसको देखिए, ठीक है ना। तो आपका जो बेसिक डिजायर है ना, उससे आप कैसे इस डिजायर को बिल्डअप करेंगे आपको स्वयं पता लग जाएगा। सो दैट यू हैव टू डू, है ना, एट एवरी स्टेज। इसमें से किसी भी एक डिजायर को, जैसे टू बी रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, है ना, इसको लेते हैं। आपका बेसिक डिजायर ये है जो नेचुरल एक्सेप्टेबल है आपको, कि आप प्रॉस्पेरस होना चाहते हैं, ठीक है ना। और आपने अखबार में पढ़ा कि अंबानी जो है दुनिया का रिचेस्ट व्यक्ति हो गया, एक सूचना मिली, इससे एक मान्यता बना ली आपने कि अंबानी जरूर सुखी होगा, समृद्ध होगा, ठीक है। तो एक सूचना मिली आपको कि अंबानी दुनिया का रिचेस्ट आदमी है, उससे आपने एक मान्यता बनाई कि अंबानी समृद्ध ही होगा। फिर आपने एक इच्छा बनाई कि मुझे दुनिया का रिचेस्ट व्यक्ति बनना है। अगर अब इस इच्छा को देखें, दुनिया का रिचेस्ट व्यक्ति बनना है, तो ये मान्यता से आ रही है। मान्यता कहां से आ रही है? इस बात से आ रही है कि आपने मान लिया कि अंबानी समृद्ध होगा। ये जांचने का मुद्दा है, अंबानी समृद्ध है नहीं है, या इस प्रक्रिया से मैं समृद्ध हो सकता हूं नहीं हो सकता हूं, ये जांचने की बात है। समृद्ध तो आप होना ही चाहते हैं निश्चित रूप से, ये आपका सहज स्वीकृति है। इधर क्लियर? तो अभी करने लायक काम ये है कि आप अपने लिए, है ना, अपनी इच्छाओं की एक सूची बना लें, फिर उसको आप एक, है ना, एक डायग्राम बना लीजिए। कोई भी एक इच्छा लिखिए, उसके पीछे जाइए, फिर उसके पीछे जाइए, फिर उसके पीछे जाइए। जैसे एक ना रफ आउटलाइन में बनाता हूं, आप पाएंगे कि हमारी काफी सारी इच्छाएं इस तरह से ही चलती रहती हैं। जैसे एक बार ऐसी कानपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात हो रही थी, है ना, तो उनसे पूछा कि क्या चाहते हो बताओ, तो उन्होंने जो भी बताया उसको कैटेगराइज कर लिया, तो उसके ये कैटेगरी बनते हैं। जैसे अभी आप अपनी इच्छाओं की लिस्ट करते हैं तो कुछ बनने की इच्छा होती है, जैसे टू बी रिचेस्ट व्यक्ति, ना, टू बी रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आप दुनिया का सबसे, है ना, अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं। अब उसके बेसिस पे देखिए क्या है ना, क्यों बनना चाहते हैं, तो आप रिचेस्ट व्यक्ति बन के कुछ पाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल के आ रहा है, कुछ आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके लिए आप कुछ बनना चाहते हैं। उसके और आधार में देखें तो आप कुछ होना चाहते हैं। जैसे आप अपने लिए एक्सरसाइज करेंगे, है ना, आपको पता लगेगा। फिर इसको आप भले ही कई भागों में बांट दें। दुनिया के रिचेस्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं, उसके लिए इंजीनियर बनना चाहते हैं, है ना, उसके लिए, है ना,
कुछ और करना चाहते हैं, फिर उसके लिए कुछ और करना चाहते हैं, फिर उसके लिए कुछ और करना चाहते हैं, इसको आप एक्सपैंड करते चले जाइए। आप पाएंगे कि आप अल्टीमेटली कुछ होना चाहते हैं। ये आपको पता है कि नहीं कि आप कुछ होना चाहते हैं और क्या होना चाहते हैं, ये जांच परख का मुद्दा है। जैसे अभी उनके साथ मैं बात कर रहा था, जितने भी लोगों की मैंने सूची बनाई है ना, ये तीसरे कॉलम के बारे में कुछ पता नहीं है क्या होना चाहते हैं। जैसे कहीं से शुरू कर रहे हैं, भाई इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि रिसर्च करना चाहते हैं, या कुछ अच्छा नौकरी पाना चाहते हैं, या कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक, फिर क्यों चाहते हैं ऐसा, क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, उसके बाद ब्लॉक है ना। कहीं पे जाके कहीं कंडीशनिंग बन गई, चाहे परिवार में कुछ सुना उससे, कहीं से है ना न्यूज मिल गया उससे, या कुछ और खबर मिल गई, किसी ने कुछ कह दिया। जैसे अभी ये होता है कि आप प्लान करते हैं कि जैसे अभी IIT में मैंने देखा है, लोग इंजीनियरिंग करने आते हैं, जब तक इंजीनियरिंग तैयारी कर रहे होते हैं उनका बस इतना ही दृष्टि होता है कि IIT में चले जाए। अब IIT में आ गए, अब क्या करना है, तो आने के बाद सीनियर्स ने कहा कि स्कॉल लेके US चले जाओ, तो उनका एक लक्ष्य बन गया। सर ये जो पॉइंट है ट्रैवल करना का, टू बी गुड ह्यूमन बीइंग, और जो एक और पॉइंट है जो प्रेयर करना है, ये दोनों किस ऐसे आता हूँ मैं आता हूँ। अभी मैं इसके बारे में और थोड़ा उसको एक्सप्लोर करेंगे। वो हो सकता है यहाँ पे आ रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे आ रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे आ रहा हूँ। आई की प्रॉपर्टी कौन से डिजाइन फॉर करेंगे, आई की प्रॉपर्टी को सर आप वो खत्म करिए जो आप बता रहे थे। तो हो गया पहले ईयर में स्कॉल लेके US जाना है, एक तैयार हो गया है ना। फिर अभी वो स्कॉल के लिए पढ़ाई कर रहे थे, CPI के लिए काम कर रहे थे, ग्रेड पाने के लिए। तब तक उनको खबर मिली कि IIM बैंगलोर का एक लड़का है, उसकी जॉब लगी है ना, हर मंथ उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिलेंगे से। ठीक है, या शायद एक जब हम बीटेक कर रहे थे तो IIM बैंगलोर के एक लड़के को जॉब मिली थी और उसको पर एनम 1 करोड़ 10 लाख रुपए का पैकेज मिला था। सभी का लक्ष्य बदल गया। अब जो स्कॉल के लिए पढ़ रहे थे है ना, वो मैनेजमेंट के लिए पढ़ने लगे। फिर हमारे बैच की एक लड़की थी, वो टॉप कर गई IAS में, फिर सबका लक्ष्य बदल गया। अब वो IAS के लिए पढ़ने लगे। फिर कुछ भी तय नहीं है। क्यों तय नहीं है? क्योंकि क्या होना है ये तय नहीं है, ये पता ही नहीं कि क्या होना चाहते हैं। कुछ भी बनना है, कुछ भी पाना है, कुछ भी करना है। इस दायरे में जितना कुछ भी है ना, जो इसकी समझ पे आधारित नहीं है, वो आपकी मान्यता ही है, या तो मान्यता या संवेदना है। होना का मतलब आप बोल रहे हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, होना चाहते हैं, मतलब तुम होना क्या, बनना एक as in what do I want to be, Yeah, in what do I continuity. want to be, in continuity. So are we really clear about what we want to be in continuity? ना? अगर ये क्लियर हो जाए कि भाई सुखी होना चाहते हैं ना, समृद्ध होना चाहते हैं, फिर ये देख सकते हैं किसका इससे क्या संबंध है, किसका इससे क्या संबंध है। ठीक है ना? अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है भाई इंजीनियर बनना चाहते हैं क्योंकि पैसा कमाना चाहते हैं, ये हमारा जो सुखी होना है, समृद्ध होना है, वो पैसे से सीधे से जुड़ा भी है कि नहीं, ये जब तक पता नहीं है, इस तरह जितना भी काम करें वो सेल्फ डिफीटिंग है। फिर उसके पहले जितना काम करें वो सेल्फ डिफीटिंग है। तभी वही पता कर रहे हैं। तो आप किसी भी इच्छा को लीजिए है ना, आप इस तरह का एक पूरा अपने लिए डायग्राम बना सकते हैं। फिर पता करेंगे कोई हमारी इच्छा है, उसके आधार में क्या, फिर उसके आधार में क्या, फिर उसके आधार में क्या। ये आपके लिए बहुत एनरिचिंग होगा, बहुत सेटिस्फाइंग होगा। जैसे ठीक गया, इसके आधार में जो है वो मान्यता है, वही चीज। सुखी होना के बाद भी तो ब्लॉक है। सुखी होना का किसी की डिजायर है, पूछा जाए क्यों सुखी होना, भाई जो आपका चाहना है बेसिक, जिसकी आप कंटिन्यूटी चाहते हैं है ना, जिसकी कंटिन्यूटी वहां कोई ब्लॉक नहीं है, जिसकी कंटिन्यूटी ब्लॉक वहां है जिसकी कंटिन्यूटी नहीं है। लाइक टू ईट है ना, इट कांट बी इन कंटिन्यूटी, सो यू वांट टू ईट है ना, बिकॉज यू वांट टू बी समथिंग। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू बी है ना, समथिंग एज समथिंग है ना, बेसिकली दैट इज देयर इन कंटिन्यूटी। उसकी निरंतरता हो सकती है, उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। वो पता लग जाए फिर उसके आधार पर बिल्डअप कर सकते हैं। अब ये यही कर रहे हैं, पहले दिन से यही कर रहे हैं, इसीलिए पहले दिन ही लिख दिया गया है ना, क्या चाहते हैं, निरंतर सुखी समृद्ध होना चाहते हैं, फिर उसको बिल्डअप कर रहे हैं। सुख का मतलब क्या है, समृद्धि का मतलब क्या है। अगर वहां से शुरू ना करें फिर कुछ भी हम मान्यता बना लेते हैं, फिर उसको जस्टिफाई करते रहते हैं। तो ऐसे ही में से हर एक इच्छा को देख सकते हैं ना, लाइक टू बी अ गुड पर्सन, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग है ना। ये जो गुड है, ये जो गुड का आपने आशय लिया हुआ है, टू बी अ गुड पर्सन, ये जो गुड है ये आपने जांच परख के समझा है या ये किसी मान्यता से आ रहा है, दैट इज समथिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। ठीक है ना,
यू हैव टू फाइंड आउट, है ना, कि आपके लिए गुड का मीनिंग क्या है. दैट विल डिटरमिन कि ये जो इच्छा है टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये कहाँ से आ रहा है. सर मान्यता सोचने के बाद कोई मान्यता है हमारी, दैट्स अ फैक्ट. लेकिन हम उस मान्यता के बाद अगर हमने उसके बारे में सोचा भी तो वो तो फिर नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं आएगी. अगर सिर्फ सोचा है ना, सिर्फ सोच के तो कुछ भी नहीं आता. अगर आ भी सकता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट थिंग इज उसका कुछ तो ओरिजिन होता ही है, चाहे वो मान्यता है ही हो. रीजन तो है, आई एम नॉट डिनाइंग द रीजन, है ना, बट इज दैट रीजन नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, राइट. इट मे बी द केस, है ना, कि आई वांट टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. ठीक है. अब रिचेस्ट का मतलब क्या है? रिचेस्ट का मतलब यह है कि मुझे हर एक को डिफीट करना है. ठीक है, तभी तो मैं रिचेस्ट बनूंगा. मुझे हर एक के साथ तुलना करके उससे ऊपर जाना है. अगर मुझे हर एक के साथ, है ना, ऐसा ही संबंध रखना है, उस संबंध में लय होगा या अपोजिशन होगा? अपोजिशन होगा. अपोजिशन नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? नो, है ना. तो ये जो इच्छा है ना, इसके बारे में कह सकते हैं कि ये मान्यता से आ रही है. ठीक है. संवेदना से भी आ सकती है. क्योंकि फील की रिचेस्ट व्यक्ति बनने के बाद आप कॉन्टिन्यूसली खाते रहेंगे, है ना, या मखमली पीस करके आप लेटे रहेंगे. बढ़िया, ये संवेदना से आ रहा है. It could either be one or two for you, है ना. And it may be the case, in this moment it is coming from one, the next moment is coming from two. जैसे आपने किसी को जाते देखा और देखा कि भाई रिचेस्ट व्यक्ति इसको मांगते हैं, है ना, और लोग इसका फोटो खिंचवाने के लिए बिल्कुल भीड़ लगाए खड़े हैं. इट इज कमिंग फ्रॉम वन. आपने देखा कि खूब बढ़िया खाना खा रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम टू. That's exactly how they show in the movies also, ना? कि किसी छोटे उनको बच्चे पता है ने- कि आप वन और टू से ड्रिवन है. You see somebody in the movie doing something like this. देखिए, एडवर्टीजमेंट का जो बेसिक है वो यही है ना. उनको पता है कि आप कहीं ना कहीं मान्यता या संवेदना से चलते हैं. ठीक है, तो आपको चलाते रहते हैं. जैसे वो हर बार ऐसा ही कुछ ऐड बनाते हैं जिसमें आप किसी मान्यता पर क्लिक कर जाता है. जैसे लाइफ हो तो ऐसी, ठीक, आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, उनको पता है. इसके बाद आपने कुछ मान रखा है और उसको क्लिक कर जाते हैं. सर, किसी एक डिजायर को आप इस तरीके से डाइसेक्ट करके बता पाएंगे? कोई भी एक डिजायर, ये डाइसेक्शन, क्योंकि मैं जितना सोच रही हूँ वो अटक रहा है. सर मेरी रिक्वेस्ट है, आई की नेचुरल एक्सेप्टेंस कौन कौन सी है प्लीज बता दीजिए. इसमें से अभी पूरे वर्कशॉप उसी बात हो रही है. इसमें से तो ये है. तो हमें जब टारगेट पता पड़ जाएगा तो हम अपनी एक्सेप्टेंस को उससे वैरी करेंगे. Sir, few minutes back I stated one. ठीक है, मैं उसको बता देता हूँ, है ना. Your natural acceptance is that you want to be in harmony within yourself, with everything around you, है ना. This is your natural acceptance. इसको अगर नहीं देख पाते हैं तो अपने सुख की इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं. These are all, है ना, desires coming from either preconditioning or simulation. To be in harmony with your natural acceptance, ये बेसिक नेचुरल एक्सेप्टेंस है आपका. ये देख लें कि is this desire coming from the basic desire of being in harmony or not? Like you want to learn this language, to be in harmony with all. To finance poor children in study, to be in harmony. सर, So टू that बी will इन be हार्मनी विद ऑल, जैसे आपने बोला टू बी इन हार्मनी विद ऑल, तो इन दैट टर्म्स सबके साथ हार्मनी बनाने के चक्कर में हो सकता है हम कोई ऐसी डिजायर अपने मन में रखें जो कि हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन हार्मोनियस है. देखिए, यानी कि अभी तक ये अपने को दिखा नहीं है ना, वी वांट टू बी हार्मनी विद ऑल. तो ठीक है, उसको आराम आराम से देख लें. अभी इतना तो देखना शुरू करें, है ना. जैसे परिवार में जो लोग साथ रहते हैं उनके साथ हार्मनी होना चाहते हैं कि नहीं. परिवार के बाहर जो लोग उनके साथ हार्मनी चाहते हैं कि नहीं. ठीक है, ऐसा नहीं करें कि आप ऐसा बना लें, कोई इच्छा बना लें या हार्मनी बना लें, ऐसा कुछ नहीं. नहीं, जैसे हम ये प्री कंडीशनिंग के टर्म से बात करें ना, ऐसी डिजायर्स फिर हो सकती है जो कि मैडम, ओके, ठीक है, कुम टू डिजायर्स टू भी स्टेटमेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है. अब आपको दिखता होगा कि अपने बारे में समझना, है ना, कितना मतलब रैशनल हो सकता है. इट इज कम्प्लीटली रैशनल, है ना. देयर इज नथिंग टू अज्यूम, नथिंग एब्स्ट्रैक्ट, है ना. What about point number 5? It is not precondition, but it
keeps on coming in continuity. In continuity, I am saying, every moment there are people who feel like today. Every moment they are doing this. They are working, but they are praying. They want to serve unconditional service. From where this attitude develops, and suppose anybody want to develop this attitude, Yeah. So, if you are praying with it, then it is coming from your natural acceptance. सर प्रे करने से ये सब प्रे करने से हार्मनी आएगी, ये भी तो एक प्रीकंडीशन है. Yeah. So, if you look at that, whether this will ensure harmony or not, this is something coming from preconditioning. See, it is coming by itself. You are not doing it intentionally. For example, आपने जो भी अभी वो जो क्लिपिंग में वो बच्चे को एक्सीडेंट होते हुए देखा, आपको प्री कंडीशन नहीं हुए, किसी ने नहीं बोला कि प्रे करो या ऐसे में प्रे करना है, किसी ने सिखाया नहीं. इट इज कमिंग फ्रॉम विद बचपन से यही सिखाया जा रहा है. From very first day of the life, we are learning this thing to pray. वहाँ से अडॉप्ट कर लिया है. Whenever you want anything, you pray. जिसने मारा वो भी तो कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया? वो घबरा गया, भाग गया. लग रहा है सर, लेकिन ऐसा मिलेगा ठीक है, नहीं ये बात ठीक है. अगर ना सिचुएशन को लें, तो किसी को चोट लगी है ना, हमारी सहज स्वीकृति है कि कोई घायल ना हो, कोई आहत ना हो, है ना. ये आपकी सहज स्वीकृति है. बट ये जब मैं प्रे करती हूँ, है ना, तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा. दिस इज नॉट अ डेफिनेट प्रोग्राम फॉर इट. So to assume that my prayer will help in getting him well is coming from some kind of thing, है ना, like conditioning or something. So that you have to explore. Is this prayer the real program to ensure that the other person does not, है ना, get into this state or comes out of this state? So this you have to explore. So that you have to find out. Again, make that kind of, है ना, structure, and then at some stage that preconditioning is entering. म्यूचुअली एक्सेप्टेबल जब होता है, जब हम उसके अंदर शायद ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, फंक्शन ही जिससे कुछ सही होता है. तो प्रोग्राम अगर डेफिनेट है ना, तब तो नेचुरल एक्सेप्टेंस से आ रहा है. प्रोग्राम अगर किसी कंडीशनिंग से आ रहा है तो फिर एक नंबर का ही बात है. I just thinking maybe one criteria which would help us also understand the desires is to know whether the desire that you have, whether it's more feasible, whether it can be realized. And that would have to also be in connection with whether it's in harmony with you, whether you're going to be the richest man in the world is probably not feasible. So this feasibility, the pragmatic aspect is also something, because if you have all these desires that are really very, very good desire here, very uplifting, but if they can't be realized, then maybe, you're sort of just building castles in the air. And so the feasibility is perhaps important. Yeah, it is an important thing. But it is a possibility that you can be the richest. Every moment there is somebody who is the richest. Okay. But that does not ensure that he is prosperous. Somebody is always the richest. What about world peace? World peace. So that world peace is coming from natural acceptance. You want peace in the world. That's harmony at all levels. On the basis of feasibility. बट दिस इज ऑल्सो प्रीकंडीशन. अगर हम उसके बारे में सोचते कुछ नहीं है, बस हाँ वर्ल्ड पीस होना चाहिए. भाई अगर वर्ल्ड पीस जो प्रोग्राम बना रहे हैं आप, है ना, अब प्रोग्राम बना रहे हैं तो वर्ल्ड पीस हो, हमें वर्ल्ड पीस हो गए, वर्ल्ड पीस हो. सर यहाँ तो बस ये ना वर्ल्ड पीस चाहिए. Critical to the peace of the world. उसके लिए हम कुछ वर्ल्ड होना चाहिए. आपने जो प्रोग्राम बनाया है प्रोग्राम बनाया ना, तो बस सोचा कि वर्ल्ड पीस चाहिए, बस प्रीकंडीशन. नहीं, आपका जो डिजायर है वर्ल्ड पीस का, दैट इज नेचुरल एक्सेप्टेबल, है ना. बट वर्ल्ड पीस के डिजायर का आप जो करने वाले हैं, दैट हैज अगेन टू बी वेरीफाइड. ठीक है, एक इसमें आप काम कर सकते हैं, जैसे मेक ब्लॉक डायग्राम. और आप अपनी इच्छाओं को लेके जाइए, है ना, फिर इसको करेक्ट कर दीजिए. जैसे कोई इच्छा हुई, देखिए उसके, है ना, वो इच्छा कहाँ से आ रही है, फिर वो इच्छा कहाँ से आ रही है, फिर इस इच्छा से क्या निकल के आने वाला है. इसको बनाना शुरू करिए. ठीक है, फिर उसके रूट तक जाइए, आपको दिखने लगेगा साफ साफ. मेरी रिसर्च से इतनी सारी इच्छाएं आपने बताई हैं, उनमें से मुझे इच्छा भी ऐसे लगती है जो खूब इच्छाएं हो. ऐसी इच्छाएं बताओ जो मेटलिस्टिक हो, जो दिखाई दें, जो
जिनमें आप ये बता सको कि हमारा ये ग्राउंड है, इसके बेस पे ये इच्छा है, हमने इसको ऐसे इम्प्लीमेंट पूरे किया। वर्कशॉप में वही बात कर रहे हैं। तो वो तो इसमें किसी में भी दिखाई नहीं देता, कोई एक आध को छोड़ के। भाई तो ये ज्यादातर तो प्री कंडीशनिंग से ही आ रही है नहीं। अभी आप अगर अपनी इच्छा का काम करना शुरू करें, That's just to put it in the blackboard. Sir, please हाँ, speak इसलिए for yourself. है ना, then of course we can discuss something else. We can have some of your real desires. प्रैक्टिकल बता दो सर, प्रैक्टिकल हॉस्पिटल्स में जाके आप वो केस स्टडीज देख सकते हैं। प्रेयर के ग्राउंड पे मेडिकली कोई प्रूफ नहीं है कि वो कैसे पेशेंट जिंदा हुआ है, लेकिन But madam, every hospital is having temple first. The moment you are entering, every day there is temple and it is being prayed. 24/7 prayers are being done. भगवान सही करते हैं। Madam, half of the night has gone by praying, and half of the whole day by praying. Basic exercise is not meant to, है ना, make you accept what is being written here. It is only meant to let you self-explore. So let us start, है ना. This is only one desire of yours. There are multiple desires. So let us get into every desire, है ना. उसके बारे में और पता लगाते हैं। ये आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है ना, और आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा कि आपकी ज्यादातर इच्छाएं ऐसी हैं जो या तो मान्यता से आ रही है या संवेदना से आ रही है। आपकी सहज स्वीकृति क्या है, इस पे आपने ध्यान दिया ही नहीं, उस पर ध्यान देना शुरू करिए तो बहुत डेफिनेटली दिखता है। अगर आपको अपनी सहज स्वीकृति ठीक ठीक दिखने लगे तो उसके लिए कार्यक्रम भी ठीक ठीक दिखने लगता है। जैसे यही है ना, अगर अपने कोई दिखने लगे कि सुखी होने का मतलब है व्यवस्था में होना, उसके लिए कार्यक्रम निश्चित है, सबके साथ व्यवस्था में होना, स्वयं में होना, शरीर के साथ होना, है ना, परिवार के साथ होना, प्रकृति के साथ होना, एक डेफिनेट प्रोग्राम दिखता है। तो वही तो पता लगाना है। अभी ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जो अभी बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में आपकी अवेयरनेस बन जाए, उसका भी वैल्यूएशन कर ले, है ना, उसका आकलन कर ले, उसका मूल्यांकन कर ले। इसको करना शुरू करिए। एक और चीज आप कर सकते हैं, है ना, जैसे आप कभी 10 मिनट बैठ जाइए और इस बात को अपने आप से पूछिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको लिखना शुरू करिए। क्षण की वैसे जिंदगी नहीं, आप अपने आप से पूछिए कि व्हाट एम आई डूइंग। Don't mind the questions. और आप देखिए कि अपने आप में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। वही इट इज ओनली अनडायरेक्टेड, है ना, जब तक आपको पता लग जाए तो सब कुछ डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं जा रहा है। जैसे आप देखिए, है ना, जैसे अपने आप में आप हो सकता है अपने, है ना, घर पे जो घटना हुई कोई उसको ध्यान कर रहे हैं, है ना, उससे आपका, है ना, ध्यान जा रहा है। आप लिख दीजिए कि मैं घर पे घटी किसी घटना पे देख रहा हूँ, मैं उसे विचार कर रहा हूँ, फिर उससे आप कहाँ पहुंचे, फिर उससे आप कहाँ पहुंचे, फिर उससे कहाँ पहुंचे, उसको बना लीजिए। यस, नीचे वाला हो जाएगा, सेकंड क्लास हो जाएगा। ये वाला ये आप करना शुरू करिए, है ना। आपको पता लगेगा जैसे कोई एक चीज है ना, आप किसी एक बिंदु पे ध्यान दे रहे हैं, वहां से आपका ध्यान, है ना, बहुत सारी चीजों पे गया, फिर उसमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर उससे आपका, है ना, और बहुत सारी चीजों पे ध्यान गया। जैसे घर की ओर ध्यान गया, घर की ओर ध्यान गया तो घर पे घटी किसी घटना पे ध्यान गया, फिर वहां से किसी एक व्यक्ति की ओर ध्यान गया, फिर वहां से किसी और घटना में ध्यान गया, और ऐसे आप कंटिन्यूसली एक्टिव रहते हैं। इसको आप करने लगेंगे तो आपको पता लगेगा एक तो आप एक्टिव है, दूसरा कंटिन्यूसली एक्टिव है, तीसरा आपकी एक्टिविटी किस प्रकार की है। जैसे आपको दिखेगा कि आप किसी एक मुद्दे पर ध्यान देते हैं, है ना, तो एक वस्तु के रूप में वो आता है, फिर धीरे धीरे उसका चित्र फैलता है। जैसे घर की ओर ध्यान गया, घर पहले बहुत ही, है ना, पॉइंट के रूप में, संक्षिप्त वस्तु के रूप में दिखता है, फिर वो धीरे धीरे फैलता है, ये एक्सपैंड करता है, फिर उसके कई भाग हो जाते हैं, फिर उसके कई भाग हो जाते हैं, फिर उसके किसी एक भाग का आप चयन कर लेते हैं, फिर उसके साथ भी ऐसा ही होता है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, है ना। ऐसा आप करना शुरू करिए। ये जो हो रहा है ये चित्रण की क्रिया है ना, जो किसी एक चित्र का आपके अंदर फैलना है, ठीक है ना। जिससे कई भाग हो जाना ये विश्लेषण है, एनालिसिस है, जिससे किसी एक पार्ट को सेलेक्ट करना ये सिलेक्शन है। आपको दिखता है कि आप हर समय इमेजिंग कर रहे हैं, है ना, एनालाइजिंग कर रहे हैं, सेलेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक
ठीक है, इसको आप करना शुरू करिए। इसको आप और देखेंगे ना तो पाएंगे जो आप चित्रण कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसके बेसिस में आप कुछ होना चाहते हैं। वो जो होना चाहते हैं ना, वो भी और चर्चा में आएगा, वो 1 और 2 की बात है। वहां से ओरिजिनेट हो रहा है ना। फिर आपने यहाँ जो फैलाया, वो जो कुछ आप होना चाहते हैं और आपने जो फैलाया, इसके बीच सीधा सीधा संपर्क है कि नहीं? अगर सीधा सीधा संपर्क है तो ये नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पर फैल रहा है। जैसे ये घटना हम सबके साथ संबंध पूर्वक जीना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें घर की कोई घटना याद आई, किसी के साथ हमारा विरोध हो गया, तो हमने जो विश्लेषण किया, कई चीजों को देखा, उसमें उस व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि इसके साथ मेरा संबंध क्या है, फिर संबंध का चित्रण होता है, ठीक है ना। ये ऐसे फैलता है। ये हो सकता है कि आपको लगे कि सुखी होने के लिए किसी न किसी से विरोध तो लेना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो जान कैसे छुड़ाएंगे, ये मान्यता एंटर कर गई। फिर जहां वो विरोध एंटर किया, विरोध फैलने लगता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज योर डिजायर। यहाँ पे थॉट हो रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। इस हिसाब से तो रैंडम थॉट और डिजायर में कोई फर्क ही नहीं है। ये तो बहुत रैंडमली हमने सोचा ना। डिजायर मतलब हम उसे फुलफिल करने को कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, पर अगर हमें बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाए तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ सोचेंगे नहीं। दिस इज अ वेरी रैंडम थॉट। एवरी मोमेंट you are desiring something, thinking something, analyzing something. That may be random. Most of the time it is random. ठीक है? So that you have to find out whether, है ना, your desire is random. जैसे क्या हुआ, अभी यहाँ पे कहीं पहुँच गए, है ना, मतलब ये तो खैर ऑर्डर में लिखा गया है। जैसे कोई एक रैंडमली आपका एक डिजायर आया, ठीक है, जैसे किसी स्टेज पे। रैंडम थॉट्स के पीछे भी डिजायर होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रैंडम थॉट्स के पीछे भी डिजायर होता है? एग्जैक्टली। और रैंडम डिजायर के पीछे, है ना, भी कोई डिजायर है, तो उसके पीछे भी कोई डिजायर है, और उसके बेस में कहीं नेचुरल रैंडम थॉट्स के पीछे ऑर्गेनाइज्ड डिजायर्स होंगी, जिनके पीछे उनकी ऑर्गेनाइज्ड डिजायर्स होंगी, और नीचे चल करके कोई नेचुरल एक्सेप्टेंस। ओनली आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड द राइट थिंग। ऑर्गेनाइज्ड डिजायर तभी है जब आपने सही को समझ लिया। जैसे ये ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो आप कहीं यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, बट ये रैंडम भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपकी एक इच्छा जो है दूसरी इच्छा के विरोध में खड़ी है। जैसे अभी क्या हो गया, हमने लाइफ को, है ना, बहुत सारे कंपार्टमेंट में बांट लिया है। एक प्रोफेशनल लाइफ हो गया है, एक फैमिली लाइफ हो गया है, एक पर्सनल लाइफ हो गया है, एक सोशल लाइफ हो गया है, और हर एक अलग, है ना, एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। प्रोफेशनल लाइफ है तो चीटिंग करना है, झूठ बोलना है, सब कुछ करना है। पर्सनल लाइफ है ना, तो अपने को अलूफ रखना है, इंटरफेरेंस किसी का नहीं एक्सेप्ट करना है। फैमिली लाइफ है तो मिलना बोलना है, बातचीत करना है। सोशल लाइफ है तो एक प्रकार से चलना है। अब आप इन सारे, है ना, जो आपने लाइफ के कंपार्टमेंट बना लिए हैं, इनको आपस में मिला के देखिए, कोई लय है कि नहीं है? नहीं है। अगर लय नहीं तो स्प्लिट पर्सनालिटी सॉर्ट ऑफ एग्जैक्टली वही चल रहा है। तो वो तो गलत है। ठीक है, अभी तो ऐसा चल रहा है ना, अभी तो हमारा लाइफ स्प्लिट हो ही गया है, क्योंकि हम अपने आप स्प्लिट है। जनरली मैंने देखा लोग बोलते हैं भाई ये प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें ऐसे चलता है ना, ये फैमिली लाइफ है, इसमें ऐसे चलता है, हमारी पर्सनल लाइफ इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है ना, ये सोशल लाइफ है, इसमें थोड़ा सोशलाइजिंग ये सब करना ही पड़ता है। अब ऐसे चल रहा है। हम आपस में उनको साथ में रख के देखें, ये जो चारों भाग में जो डिजायर्स हो रहे हैं, उनकी आपस में कंपेटिबिलिटी है कि नहीं। जैसे अभी, है ना, प्रोफेशनल लाइफ में एक सामान्य सी मानता है कि इफ यू हैव टू सर्वाइव यू हैव टू बी द फिटेस्ट। ठीक है, अगर फिटेस्ट होना है तो सबके साथ स्ट्रगल करना है, यू हैव टू स्ट्रगल, जो भी है ना। फैमिली लाइफ में आप यही मान्यता लेके चलते हैं क्या, यू हैव टू स्ट्रगल विद योर फैमिली मेंबर्स? नहीं चलते हैं। अब ये जो आपके डिजायर है स्ट्रगल, और ये जो डिजायर है टू केयर फॉर द अदर, है ना, दे डू नॉट गो हैंड इन हैंड, है ना, सो दे आर इन अपोजिशन, और आप उस अपोजिशन को अपने अंदर लेके चल रहे हैं। अब आप अपोजिशन की सोचते हैं, मतलब स्ट्रगल की सोचते हैं, तो रिलेशन जाता है, रिलेशन की सोचते हैं, है ना, वो अपोजिशन का फीलिंग प्रश्न उठता है, फिर आप अपने आप में बढ़ जाते हैं, फिर बांट लेते हैं आप। तो आपकी एक तरह की लाइफ होती है समाज में, एक तरह की लाइफ होती है ऑफिस में, एक तरह की लाइफ होती है फैमिली में, और अपने आप जब सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती। And then we say that it has to be situation based. वही फिर कुछ ना कुछ यही बनाते हैं कि सांस पे ध्यान दो, ऊपर करो, नीचे करो, आगे करो, पीछे करो। इस प्रैक्टिस को एनफोर्स कैसे किया जा सकता है? नेचुरल एक्सेप्टेंस की प्रॉपर्टी को हम
हर मोमेंट रियलाइज करें और स्ट्रांग बनाएं, इसको हाउ टू एनफोर्स दिस प्रैक्टिस, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू से rather than really practicing it. So, देखिए इसका एक सरल विधि है कि संबंध पूर्वक जीना शुरू करें। दूसरों के लिए नहीं, हर एक के साथ या जितने लोग साथ आप शुरू कर सकते हैं। संबंध पूर्वक जीने के क्रम में आपका स्वयं पे भी ध्यान जाता है ना, दूसरे पे भी ध्यान जाता है। मतलब क्या है संबंध? संबंध पूर्वक जीने का मतलब है कि जिनके साथ हम जी रहे हैं उनके साथ संबंध में हार्मनी को इंश्योर करने के लिए हम काम करना शुरू करते हैं। लाइक चूज एनीबडी इन द फैमिली एंड ट्राई टू इंश्योर हार्मनी इन कंटिन्यूटी एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। Easy to next level. properties जो उसे अप्लाई करें। this जो भाव And they are natural, so do not have to always refer to your copy and then get back to the other. आपके साथ आप कर पा रहे हैं सर, डोंट माइंड। देखिए जितना जितना मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ ना, उतने मैं हार्मनी को इंश्योर कर पा रहा हूँ। जितने मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ उतने में हार्मनी को इंश्योर करना मेरे लिए भी कठिन पड़ता है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। सर आप तो रेगुलर इससे देयर आर लेयर्स ऑफ कंडीशनिंग्स है ना, एंड वेल इट हैज टू गो बिटवीन दोस लेयर्स। तो ठीक तो फिर भी है, आगे एक ये पर्सनल है। शेयरिंग कर सकते हैं ना, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। सो why don't you begin by telling us how did you got exposed to Jivan Vidya and what was your first experiment that enlightened you towards it? Your personal first experiment that may help us. And how many years you have been doing it actually? सब तो Demercialize हो जाएगी कभी तो जड़ में जाना चाहते हैं। नहीं, ट्रस्ट करके आई कैन टेल कि जब मैं बीटेक कर रहा था उस समय मेरे अंदर बहुत सारे इस तरह के प्रश्न थे, उसके लिए मैं खुद से भी कुछ अध्ययन कर रहा था। तो जैसे बहुत सारे बुक्स पढ़ा, लोगों से मिला और वर्कशॉप भी किए कई तरह के। उसी क्रम में मेरा सर से मिलना हुआ, बागड़िया से मिलना हुआ, सर ने एक शिविर में आने लगा वर्कशॉप में। तो वैसे मैं एक वर्कशॉप में गया और मुझे कुछ बात ठीक लगी, बट उस समय मैं कुछ और चीजों पर ध्यान दे रहा था, तो उससे बहुत क्लियर नहीं हो रहा था कि ये वही चीज है जिससे मेरा लक्ष्य पूरा होने वाला है। लेकिन इतना अपने को पहले से लगता था कि सुविधा से तो सुख मिलने वाला नहीं है, तो सुविधा संग्रह की ऐसा कोई इच्छा नहीं था कि सुविधा संग्रह के लिए काम करना। तो कुछ भी कर रहे थे बट इट वॉज नॉट क्लियर कि ये हमको लक्ष्य तक ले जाएगा। तो जब इस बात से परिचय हुआ तो अपने बारे में और अध्ययन शुरू हुआ, जांच परख शुरू हुई और ऐसा लगने लगा कि हाँ ये बात ठीक है, इससे मैं भी सुखी हो सकता हूँ, मतलब मेरा लक्ष्य पूरा हो सकता है और समाज में भी इस लक्ष्य को सुनिश्चित किया जा सकता है। मैं ऐसा दिखता था कि समय तक तीन तरह से मोटिवेशन मिलता था। जैसे एक तो होता था कि जो हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं है ना, वो सॉल्व हो, जैसे फैमिली में रिलेशनशिप को लेकर या पढ़ाई को लेकर है ना, जो मेरे है ना तुरंत रेलिवेंट है उसको लेकर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। दूसरा मोटिवेशन ये था कि मेरे बहुत सारे कौतूहल के प्रश्न थे ना, वो रिजॉल्व हो जाए, जैसे मैं क्यों हूँ है ना, या फिर तो क्यों है, ये सारा कुछ क्यों चल रहा है, कुछ इस तरह के प्रश्न थे ना। मेरा क्या होगा, शरीर गया तो मैं भी गया कि बचा रहूंगा, कुछ इस तरह के प्रश्न। तीसरे तरह का प्रश्न था कि समाज व्यवस्था कैसे बनेगी, मतलब जिसको भी देखते थे तो सामाजिक आंदोलनों में भी कुछ भागीदारी रही, तो उसमें भी देखते थे तो लगता था कि एक तरीका है बट ये बहुत ठीक नहीं लगता था। दूसरा एक अध्यात्म की परंपरा दिखती थी, उसमें लगता कि ये समाज में नहीं जा रहा है, एक कोने में चला जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न में रिजॉल्व नहीं हो पा रहे थे। इसको सुनने के बाद ऐसा लगा कि मेरे तीनों तरह के प्रश्नों का उत्तर मिल पा रहा है, तो आश्वस्ति बन गई। फिर उसके बाद यहाँ कानपुर में हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूशन शुरू करके इसको विधिवत शिक्षा के रूप में देना शुरू किया। तो वो जब देना शुरू किए तो उसमें अभिभावक के रूप में शामिल हुए और उसमें फिर अपना भी अध्ययन ठीक से शुरू हुआ और दूसरे तक इस बात को पहुँचाने के क्रम में एक वृत्ति भी मिली, इसमें समाज में वस्तु को ले जा रहे हैं, तो उससे और उत्साह बना, गति बनी। फिर उसमें बहुत सारे अपने बारे में पता नहीं था पहले, ऐसा लगता था कि ये काम इतना कर लेने से पूरा हो जाएगा, बट बहुत सारी और मान्यताएं थी जिनका अध्ययन शेष था। तो अभी उनके अध्ययन में गए तो पता लगा कि बहुत सारा होमवर्क करना है, तो ओके चल रहा है, तो बहुत सारा होमवर्क हो रहा है। ये तो अपने को शुरू से लगता था कि सुविधा संग्रह से ना सुख की निरंतरता होने वाली नहीं, इसमें अपने को कोई मेहनत नहीं पड़ी इस बात को एक्सेप्ट करने में। संबंध को लेकर विश्वास के भाव को, सम्मान के भाव को लेकर ऐसा लगा कि अपना बहुत सारा अध्ययन बाकी है। तो इन भावों को निरंतरता में सुनिश्चित करने क्रम में तो मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, ताकि हर एक संबंध में विश्वास सम्मान को सुनिश्चित कर सकूँ, तो हर व्यक्ति मेरे से आश्वस्त हो सके, मेरा व्यवहार सबके लिए तृप्तिदायक हो सके, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और इस बात के लिए भी प्रयास चल रहा है कि इस चीज को समाज में ठीक गति से ले जा सके,
लीवर फेलियर, इन सबको करते हुए अपने बारे में अध्ययन होता रहता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट वॉज कि पहले से कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे, मिल जाए। तो इट डिड नॉट टेक मी मच लॉन्ग टू एक्सेप्ट दिस। सर पूछना चाहूंगा उदय से, इनका जो था क्वेश्चन, आई वांट टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर लिसनिंग कुमार सर, नाउ व्हाट विल से आंसर प्लीज। नहीं, उसको भी उनको मुझे इनसे तो आंसर जवाब चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। You want to become richest person of the world yet? Yes or no? Actually, now my thinking is going to, change. Thank you. Why? कंधे पे हाथ He रखा came to know about the reality of the life. All the sukh, sida, samradhi, not getting the peace. कंधे पे हाथ रखा हो, बंदूक रखी हो, दर्द तो हो ही रहा है। Then I was very हमें happy. तो पड़ेगा ही। Relaxed or something. But then I got admission in play. I was enjoying with my, Then at 12, again I was missing something. But then I got education. Then same way, I got LLB degree, I got job, I got good wife. But then also I was looking for something. And now it's too, I am too old on that piece which I was looking for. Yeah, I am husband. I was looking for सर something आदर peace. भाव भी तो एक अच्छा भाव कहलाता है। ट्रस्ट इज समथिंग विच इज वेरी गुड। द थिंग इज, आप किसी को रेफरेंस दो तो लोग रेफरेंस नहीं लेना चाहते, और उसके बदले में भी दे डूइंग बैक टू यू। लोगों को रेस्पेक्ट मिल जाए वही बहुत है, प्रेवलेंस की बात सर कर रहे एक एग्जांपल है, जैसे सपोज मैं बचपन में वो होता था स्टेशन में गर्मी की छुट्टियों में पानी पिलाते थे एंड ऑल, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट। लौट के आ रहा था, आई सॉ ओल्ड लेडी, मुझे लगा वो अपना सामान नहीं उठा पा रही है एंड शी वॉज कैरिंग अ स्ट्रिक ऑल्सो, चल रही थी, बहुत बूढ़ी थी। मैंने उनका कहा लाओ अम्मा मैं तुम्हारा सामान पहुंचा देता हूँ, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट। उसे लगा मैं चोर हूँ, डंडी से पिटाई कर दी। राइट, उस परसेप्शन में मैं तो अच्छा ही करने गया था ना, लेकिन उसका परिणाम गलती हुआ। उस केस में क्या करेंगे? देखिए, इसमें मुद्दे की बात यह है कि जब उस व्यक्ति ने, महिला ने आपसे ऐसा व्यवहार किया, तो आपको उसके इंटेंशन पे डाउट हुआ या नहीं? मुझे डाउट के डाउट घड़ी कि में मैं दौड़ के भागा वहां से, कुछ डाउट तो कुछ है ही नहीं। मुझे लगा कि पब्लिक मार दी, नहीं? पब्लिक मार दी वरना हाँ, पब्लिक को भी ये लगता कि मैं चोरी कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। उस समय तो मेरे को पता भी नहीं था ठीक है, चोरी उस का। समय का जो प्रोग्राम है ना, वो तो आपने राय बनाई, भागना है भाग लीजिए, ना जाइए ना। बट दैट यू हैव टू सी कि जब आपने ऐसा व्यवहार किया ना और दूसरे से ऐसा व्यवहार मिला, तो आपको दूसरे के इंटेंशन पे डाउट हुआ या आपके इंटेंशन पे आपका एश्योरेंस बना रहा। अगर एश्योरेंस बना रहा है ना, तो उससे आपको तृप्ति बना रहने वाला है, सुख बना रहने वाला है। अगर उसके इंटेंशन पे डाउट हो गया तो आप परेशान होने वाले हैं। इंटेंशन पे डाउट का क्या मतलब? इंटेंशन पे डाउट का मतलब है कि आई अज्यूम दैट द अदर वांट्स टू मेक मी अनहैप्पी। वो तो हुआ, दैट्स व्हाई ही हैड टू रन, एस्केप हिमसेल्फ। हाँ, नहीं, इट मे बी द केस कि आपको पता है ना, कि वो तो मुझे सुखी करना चाहता है या चाहती है ना, मगर इस स्थिति में उसको खुद पता नहीं उसका प्रोग्राम क्या है, तो इसलिए मुझे इस तरह का प्रोग्राम बनाना चाहिए। बट उसके साथ ये कोई जरूरी नहीं कि आपको उसके इंटेंशन में डाउट हो ही जाए। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। क्या करते हैं?